Morning students. Today is a new topic, general equation of a line formula. General equation of line, suppose ax by plus c equal to 0. Okay, the slope of the intercept you know about. Slope of intercept x upon a y upon b equal to 1, which is a intercept equation of line. Number 2, normal form. नॉर्मल फॉर्म सेम इक्वेशन, जनरल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना है. तो नॉर्मल फॉर्म है दिस ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड नॉर्मल इक्वेशन एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी. ओके, सो देन फाइंड ओनली फॉर्मूला. ओके, दिस रिलेशन cos omega equal to plus minus a upon under root a square plus b. This is a capital A, capital B. Okay, a square plus b square. Same, sin omega equal to b upon under root a square plus b square, and p equal to plus minus c upon under root a square plus b square. Formula है normal form. Okay, and that next will be equation of this find. So y equal to mx plus c. This is the intercept equation, and this y and x axis, this intercept at c distance of this 0, c is the equation of a intercept on single point. Okay, only single point, right? This is m be the slope of this. He already explained of this equation of a line, and that perpendicular, see 3 equation of a line, this line, and take point P perpendicular from P on a line. Clear? For this अभी तक आपने इस टाइप का पढ़ा था, ऐसे दिस साइड स्टडी ऑफ दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. क्लियर? बट इसको आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर पॉइंट दिस साइड. तो दिस साइड से परपेंडिकुलर आएगा तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी. ओके, तो दिस इज ए डिस्टेंस. लेट डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू दिस एम. तो पी एम इक्वल टू डी, then d equal to equation of a line. The equation is a general equation. जनरल इक्वेशन क्या है, ax by plus c upon square root of a square plus b square, and this is a distance from p point, this type. And equation number 5, Cartesian plane, x and y, two lines are parallel, L1 and L2, L1 parallel to L2, and distance between of two parallel line D, this. The equation of line y equal to mx plus c1, y equal to mx plus c2. Only change of this are parallel in condition parallel. इन पैरेलल कंडीशन में C1 C2 यानी रेफरेंस दिस इंटरसेप्ट पॉइंट, दिस C1 सपोज एंड दिस C2, यही पॉइंट चेंज होगा, बाकी इक्वेशन ऑफ लाइन सेम होगा. एक्स एंड वाई आर वेरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम एंड स्लोप इज सेम, बट कोफिशिएंट इज कांस्टेंट वैल्यू C1 C2 आर only change only in parallel condition. Yes, equation of general is given, तो only C1 C2 is changed. तो डिस्टेंस बिटवीन इन पैरेलल कंडीशन, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पैरेलल लाइंस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C2 माइनस C1 और C1 माइनस C2 अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वेयर प्लस 1 प्लस, दिस इज 1 प्लस m स्क्वेयर
this is m cross na, so this is m is means c1 minus c2 या c2 minus c1 upon 1 plus m square. This is a distance between two parallel lines. Okay, this all. Now let exercise 10.3 question number 1. Now reduce the following equation in the slope into the slope intercept form and find their slopes and y-intercepts. So this is only slope and the intercept form. Slope and intercept form. So this is slope of the mx plus c. This is a slope and intercept. C is the intercept point and m is the slope. So first question, x plus 7y equal to 0. So this change y equal to find करना है आपको, y बाकी को राइट साइड ट्रांसफर कर दो. तो 7y equal to minus x, y equal to minus x upon 7. Clear? this हो गया. एंड फाइंड, तो दिस इज फॉर्म ऑफ दिस. कंपेयरिंग कर दो, y equal to mx plus c. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो फाइंड y है, m की इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 एंड c इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर 0. यही फाइंड करना है सबको. y इक्वल टू mx प्लस c में चेंज कर दो, फाइंड कर लो. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म. normal form and find the perpendicular distance from the origin and angle between, equation into intercept form, only intercept form and find their intercept on the axis. Intercept value about axis R, A and B. तो इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1. तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है. फर्स्ट इक्वेशन 3x plus 2y minus 12 इक्वल टू 0. दिस चेंज टू इन दिस फॉर्म. तो क्या करने का है कि सबको कांस्टेंट 1 बनाना है मुझे, बस फोकस इतना करने का कि कांस्टेंट 1 हो जाना चाहिए. तो दिस चेंज टू राइट साइड. तो देखो ऐसे 3x प्लस 2y इक्वल टू कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ, ट्रांसफर टू राइट साइड. ओके, हो गया. ओनली दिस चेंज करना है आपको कि यहाँ 1 लाना है मुझे, बस इंटरसेप्ट में अपने आप ही आ जाएगा. तो डिवाइड बाई 12 ऑन बोथ साइड. तो दिस 3x plus 2y upon 12 equal to 12 by 12. Clear? So this 3y 12 plus 2y 12 equal to 1. Okay, 2 से 6 और 3 से 4. तो x by 4 plus y by 6 equal to 1, which is the equation of intercept equation, right? And find intercept points. तो इंटरसेप्ट क्या होंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर ए इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 अपॉन ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 1 अपॉन बी इक्वल टू 6 इक्वल. आंसर. एंड क्या पूछा है फिर, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट ही पूछा है एंड देयर इंटरसेप्ट राइट है. क्लियर? ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म. हाँ अभी आ गया नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ गिवन रनर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, एक्स दिस इक्वेशन under root 3y plus 8 equal to 0. Okay,
x minus under root 3y plus 8 equal to 0. So this change to this. Okay, तो intercept normal form equation divide by this. तो x minus सबसे पहले equating ax by plus c equal to 0, then a equal to 1, b equal to minus under root 3 and c equal to plus 8, and find under root a square plus b square. 1 square under root 3 square 3, that's under root 4 equal to plus minus 2, and find angles. So this divide x upon 2 minus under root 3 upon 2 y plus 8 upon 2 equal to 0. x upon 2 minus under root 3 upon 2 y plus 4 equal to 0. तो एंगल क्या होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p. नंबर 1. नंबर 2 कंपेयरिंग बोल है तो x cos ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन 2, साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2. तो tan ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ओमेगा अपॉन cos ओमेगा माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1/2 विल बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3. ओमेगा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3 मीन्स pi minus pi by 3. This is 2 pi by 3. Okay, so this 2 pi by 3, 2 pi by 3 means 2 into 180 upon 3, या तो एंगल में ले लो 3 6 120 डिग्री. क्लियर. सो अब फाइंड क्या करना है उसमें, ये देखिए फाइंड एंगल. एंगल तो हो गया हमारा 120 एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन एंड ओरिजिन से आपको फाइंड करना पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करना. डी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होती है p. दिस इज डायग्राम. ओके, दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर से p फ्रॉम ओरिजिन से p डिस्टेंस होगी तो p का फॉर्मूला यूज कर लो. अभी लिखवाया था p इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. सो c इज ऑल्सो गिवन प्लस माइनस, तो माइनस 8 है ना. c इक्वल टू देखो 8, तो दिस 8 प्लस माइनस 8 अपॉन अंडर रूट दिस कितनी वैल्यू आ गई ये आपने निकाली है 2, क्या आ गया प्लस माइनस क्या आएगा 4. तो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू तो p इक्वल टू 4. राइट, तो डिस्टेंस हो जाएगी 4, एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री एंड देन फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म यही हो जाएगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p. तो दिस x cos ओमेगा कितना आ गया आपका, cos ओमेगा हो गया 120, एंगल हो गया 120 डिग्री एंड y sin 120 डिग्री इक्वल टू दिस 4. ओके, आंसर हो गया. ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन नॉर्मल दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फ्रॉम origin, okay, and angle this, right, equation on this. Okay, next question number 4 आप कर ही लोगे ना. 5 देखिए 5. find the point on the x axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equal to 1. This is the intercept equation. Okay, is 4 यूनिट. 4 यूनिट क्या दे रखा है, 4 डिस्टेंस है. डिस्टेंस इंटरसेप्ट डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन. तो दिस सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए. डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चंस. इंटरसेप्ट एंड 4 यूनिट्स. फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताना है. दिस
तो दिस इज ये। तो दिस पॉइंट क्या होगा, x कॉमा 0। एक्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पूछा है उसने, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है कि 0 है, x कॉमा 0। बट डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन कितनी दे रखी है 4, तो इसकी इक्वेशन बना लो और 4 या तो एलसीएम लेके कर लो या फिर ऐसे ही बना लो 4x प्लस दिस इक्वेशन। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x डिस्टेंस इज गिवन, तो डिस्टेंस, तो दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, एलसीएम ले लिया मैंने। ऑलरेडी फाइंड क्या करना है मुझे, इससे इक्वेशन या फिर ये करो, इक्वेशन पास करने वाली ये ही पॉइंट होगा, उसको सेटिस्फाई 4 यूनिट होगा। तो यहाँ से मुझे क्या डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस -12, तो डिस्टेंस फ्रॉम x दिस पॉइंट, तो दिस डिस्टेंस, तो d इक्वल टू दिस 4x1 3y1 -12 अपॉन अंडर रूट 16 स्क्वेयर एंड 9। क्लियर, तो d क्या हो जाएगा 4 यूनिट 4, और दिस इक्वेशन वैल्यू पासिंग कहाँ से हो रही है, x कॉमा 0 ऑन x एक्सिस पॉइंट है ना, तो दिस पुटिंग दिस वैल्यू x दिस 4x प्लस 3 इंटू 0 -12 अपॉन अंडर रूट 25, दिस विल बी इक्वल टू दिस 0 4x -12 अपॉन 5 4, तो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 5 इक्वल टू 4x -12, दिस 20 प्लस 12 इक्वल टू 4, कितना हो गया 32 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 8 है ना, तो 8 आया आपका, तो x इक्वल टू 8, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ही फाइंड करना है इसको, फाइंड द पॉइंट, तो दिस पॉइंट क्या हो जाएगा x कॉमा 0 इक्वल टू 8 कॉमा 0, राइट। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके, और टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू दिस प्लस एंड नेगेटिव ले लें, तो ये -4 हो जाए, तो -4 इक्वल टू 4x -12 इक्वल टू 5, -20 प्लस 12 इक्वल टू 4, दिस क्या बचेगा -8, 4x और -2 इक्वल टू x, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे -2, 0, तो पॉइंट्स कितने बनेंगे, ये बनेगा, एक तो होगा -2, 0 एंड 8, 0, दैट योर आंसर। ओके, एंड सेम 6 क्वेश्चन तो वेरी सिंपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल की तो बताइए C1 - C2 इक्वल कर लो मॉडुलस ऑफ दिस, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आर सेम ही होंगे इसके क्वेश्चन में, पैरेलल में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई सेम होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है, वो कौन सी है, वो लाइन, दिस लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 2 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है एनोदर लाइन, वो लाइन फाइंड करनी है। पासिंग थ्रू, पास कहां से हो रही है, पासिंग द पॉइंट -2, 3, इस पॉइंट के लिए एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन के तो पैरेलल है, इस इक्वेशन को दे रखा है आपको 3x - 4y + 2, अब इसके एक पैरेलल है ऐसी लाइन, जिस पैरेलल, तो मैंने बताया था कोफिशिएंट तो सेम ही होंगे, पर साइन चेंज हो सकता है और C1 C2 वैल्यू चेंज मिलेगी, राइट। बट इसी इक्वेशन की लाइन वो आपको बताना है, एक गिवन है, इसके पैरेलल है, पर पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, ये जो दे रखा है, या बीच में कोई पॉइंट होगा वहां से क्या पास हो रही है दिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो दिस इज पैरेलल लाइन, तो स्लोप ऑफ पैरेलल कंडीशन बताया ना, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड, क्योंकि दोनों लाइन कैसी होंगी पैरेलल, तो स्लोप कैसी होती है इक्वल, बताया ना पीछे। ओके, तो स्लोप ऑफ दिस, तो फाइंड द स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो मुझे पता चल जाएगा पासिंग थ्रू पॉइंट है ही मेरा, क्लियर। तो यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, स्लोप निकालूंगा, या तो फिर इस स्लोप को निकालने के लिए पॉइंट की वैल्यू पुट करके हम निकाल लो, तो सीधा क्या करना है, स्लोप चेंज इन y इक्वल टू mx + c फॉर्म, तो दिस वैल्यू चेंज, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 3x + 2, ओके, तो y इक्वल टू 3y4 + 2y4 विल बी इक्वल टू 3y4x
1/2, तो ओनली m क्या हो गया, m इक्वल टू दिस, तो m इक्वल टू हो गया 3/4। मुझे तो m से मिलना है ना, राइट। और पासिंग थ्रू कहाँ से हो रही है पास, -2, 3, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो y minus y1 equal to mx minus x1, which is the equation of a line parallel to this line, okay। तो y minus this, y कितना है x3, m हो गया 3/4 और x minus +2 मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4y minus 12 equal to 3x plus 2, 3x plus 2 is 6, अब हो जाएगा 3x minus 4y, दिस ट्रांसफर इधर और ये वाला इधर, इक्वल टू -12 minus 6 is 3x minus 4y 18 plus 18 equal to 0, which is the equation of a line parallel to given line. Clear? Yes. And next 8 question, find the equation of line perpendicular to this point and having the x-axis is 3. Question number 8 is this important question. Equation of line perpendicular to the line. X की equation देखो, x minus 7y plus 5 equal to 0. Having this line. Equation of a line perpendicular to इस, तो इस लाइन पर वो परपेंडिकुलर है, जैसे है जा रही है ना, तो इस पर परपेंडिकुलर है वो लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन, तो दिस लाइन इज ऑल्सो गिवन x minus 7y plus 5 है, मान लीजिए इसकी इक्वेशन है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ओके। और हैविंग x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3, तो 3 इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इस पर ये, या सपोज करो ये इक्वेशन है, तो ये कर, तो ये वाली होगी x minus 7y plus 7 दे रखा है और इस पर वो इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये x पॉइंट है, तो x इंटरसेप्ट दिस इज ए और दिस पॉइंट b, तो इंटरसेप्ट की पॉइंट है 3, तो 3 मतलब 3,0 पे इंटरसेप्ट कर रही है वो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये कौन सी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ये मुझे फाइंड करनी है, ये वाली गिवन होगी, इससे पास होने वाली कहाँ से पास हो रही है 3,0, जैसा कितना क्वेश्चन घुमाया, x इंटरसेप्ट 3 that is point on x axis is 3,0, क्लियर। 3,0 से पास होने वाली होगी और इस पर इंटरसेप्ट पर, बट क्या है वो परपेंडिकुलर है, इसकी पर, इस पर क्या आ रही है परपेंडिकुलर, तो स्लोप कैसी होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्लोप मींस नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल स्लोप इसमें यूज होगी, राइट। दिस लाइन परपेंडिकुलर ऑन दिस, तो दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन लाइन दिस, तो दिस लाइन क्या है परपेंडिकुलर, द स्लोप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर द स्लोप, नॉर्मल स्लोप, तो फाइंड स्लोप, तो x 7y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू 1/7x प्लस 5/7, तो m इक्वल टू क्या हो गया, अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, शायद डायरेक्ट ही कंपेयरिंग कर दो, m इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू ये होगा इन द टर्म ऑफ दिस फॉर्म चेंज कर देने का 1/7, तो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए स्लोप, हमें फाइंड करनी है नॉर्मल, दिस इज ए नॉर्मल टू दिस और दिस पे परपेंडिकुलर, मान लो इसकी हेल्प लूंगा मैं, तो इसकी इक्वेशन निकालूंगा तो इसकी भी नॉर्मल यूज होगी, इसकी हेल्प लेना है मुझे, तो इसकी स्लोप जो नॉर्मल होगी वो इस पर होगी, तो दिस सॉल्व द नॉर्मल स्लोप इक्वल टू -1/m, तो -1 this 1/7, this is -7, तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप दिस एंड पॉइंट दिस, पासिंग पॉइंट 3,0 एंड m इक्वल टू -7, तो इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to given, equation of line is y minus 0
दिस m is given -7, x -3, y equal to -7 minus plus 21, और इसे इधर ले आओ 7x plus y equal to 21, which is the equation of a line, okay, perpendicular to this line. Clear? इस लाइन पर ही क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल. पैरेलल कंडीशन ये चलेगी, परपेंडिकुलर है तो दिस लाइन. ठीक, तो स्लोप पे ही डिपेंड ज़्यादा तो करता है. स्लोप ही आप परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, स्लोप नॉर्मल के लिए तो नॉर्मल होगा. राइट, परपेंडिकुलर नॉर्मल सेम ही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 is done and question number 9, find the angle between this. 9 कराना है या 10? 10 is deleted है 5 CBSE, तो 11 करा लेते हैं. जैसे 11, ओके. 9 वेरी सिंपल है, करा दो इसे, देख लेना. तब भी 9 करा देते हैं, आपको लगेगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस √3y इक्वल टू 1. फाइंड एंगल, तो फाइंड स्लोप दिस एंड स्लोप दिस, तो दोनों की स्लोप क्या होगी 1 इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू -√3x प्लस 1, और दिस वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू -x अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3. मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया राइट. तो y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c फॉर्म से हम कंपेयरिंग कर देंगे, तो फर्स्ट स्लोप हो जाएगी स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट दैट इज m1 इक्वल टू -√3 एंड m2 इधर से निकाल लो -1 अपॉन √3. क्लियर? तो एंगल फाइंड करना है, तो m फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट, या tan थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन प्लस tan थीटा, राइट. So this is a m. This will be equal to modulus m2 minus 1 upon √3 minus plus √3 upon 1 plus 1 upon √3 minus का into minus 1 √3. m equal to this value change 1 plus 3 upon √3, √3 1 3, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, √3 से √3 कट गया, प्लस 1 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन √3 अपॉन 2, तो 2 से ये कर दिया 2, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन √3 मॉडुलस. m की वैल्यू ये आ गई, तो m क्या होता है tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 2 अपॉन √3, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स, राइट, ओहो 3 गलत हो गया, दिस 3 है और ये माइनस है, राइट है, तो माइनस है तो 2 अपॉन √3, दिस 2 अपॉन थे, तो 2 2 कट हो गया, तो ये हो गया 1, राइट, 1 आया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3, मिस्टेक हो गई, देखो माइनस प्लस से देखा √3, तो दिस, तो tan इनवर्स 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, अरे π/6 मीन्स 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, राइट, ऐसे निकालने का है. नेक्स्ट 11 क्वेश्चन 10 डिलीट है बाई CBSE. प्रूव दैट द पॉइंट x1, y1 पॉइंट x, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. Prove that ax minus x1 by minus y1 इक्वल टू 0, राइट. इससे पास होने वाली लाइन जो है किसके पैरेलल है, दिसकी, किस पॉइंट से पास हो रही है, इससे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट, और दिस वैल्यू, तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप इक्वल होगी, देखो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड आपकी ये है और स्लोप ये, तो इसकी जो स्लोप होगी यही स्लोप होगी, सेम स्लोप सेम होती है पैरेलल कंडीशन में, है ना. 2 लाइन की जो पैरेलल, सॉरी 2 लाइन पैरेलल हैं, तो स्लोप आर सेम, स्लोप्स आर सेम, तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, स्लोप
कैसे होगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी, तो स्लोप क्या हो जाएगी, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो ये स्लोप आ गई। इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, x1 कोमा y1, यहाँ लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 कोमा y1, so that y माइनस y1 m x माइनस x1 फॉर्मूला होता है, तो y माइनस y1 तो यही रहेगा, m क्या होगी माइनस ए अपॉन बी और x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस x1, वन साइड ले लो तो a, राइट, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0, प्रूफ। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था। ओके, कंप्लीट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।